ملتان میں پولیس اہلکار کا شراب فروشوں کو شراب فروخت کرنے کا انکشاف۔ تھانہ نیو ملتان پولیس کی کارروائی، خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار، 408 لیٹر شراب برآمد۔ گرفتار ملزمان میں دانش، دلاور اور خاتون منور خدیجہ شامل۔ منشیات فروش خاتون منور خدیجہ کا پولیس اہلکاروں سے شراب خریدنے کا انکشاف ہے۔ 1 ماہ قبل 7 لاکھ روپے کی شراب تھانہ ممتاز آباد پولیس سے خریدی۔ خاتون کا الزام، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملتان میں پولیس اہلکار کا شراب فروشوں کو شراب فروخت کرنے کا انکشاف۔ تھانہ نیو ملتان پولیس کی کارروائی، خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار، 408 لیٹر شراب برآمد۔ گرفتار ملزمان میں دانش، دلاور اور خاتون منور خدیجہ کا پولیس اہلکاروں سے شراب خریدنے کا انکشاف ہے۔ 1 ماہ قبل 7 لاکھ روپے کی شراب تھانہ ممتاز آباد پولیس سے خریدی۔ خاتون کا الزام، تفصیلات سے آگاہ کریں گے احمد خان۔ جی احمد خان، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تفصیلات اس حوالے سے اپڈیٹ کریے گا؟ جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے وہ تھانہ نیو ملتان نے تارک آباد کے علاقے میں ایک ریڈ کیا ہے۔ گھر میں خاتون کا گھر تھا، منور خدیجہ نامی خاتون تھی، شراب فروش بدنام زمانہ تھی۔ جب اس کے گھر ریڈ کیا گیا تارک آباد کے علاقے میں تو وہاں سے جو ہے وہ 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے خاتون سمیت، جہاں سے جو ہے وہ 408 لیٹر امپورٹڈ شراب جو ہے وہ برآمد بھی کی گئی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب ہماری خاتون جو ملزمہ ہے اس سے بات ہوئی تو اس نے انکشاف کیا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ممتاز آباد جو تھانہ ہے وہاں کے پولیس اہلکار جو ہیں شراب فروشوں میں جو ہے وہ مبینہ طور پر فروخت کرنے کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے خاتون نے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1 ماہ قبل جو ہے وہ 7 لاکھ روپے مالیت کی شراب جو ہے وہ تھانہ ممتاز آباد پولیس سے خرید کی گئی تھی، جس پر جو ہے وہ تھانہ ممتاز آباد کے ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکار سے جو ہے وہ شراب خریدی تھی۔ جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، انکوائری جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ جی دوسری جانب بات کریں، شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم۔ 24 گھنٹے میں ڈکیتی کے 19، چوری کے 8 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ڈکیتی کے 16 اور 6 چوری کے مقدمات درج ہوئے ہیں۔ مقامی پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملتان شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم۔ 24 گھنٹے میں ڈکیتی کی 19، چوری کی 8 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈکیتی کے 16 اور 6 چوری کے مقدمات درج ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ڈکیتی کے 19، چوری کے 8 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مقامی پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے۔ ڈکیتی کے 16 اور 6 چوری کے مقدمات درج ہوئے۔ ماں کی ہستی اولاد پر سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ملتان کی انم شہزادی معذوری کے باوجود اولاد کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ باہمت ماں اپنی بیٹیوں کا سہارا کام کرتی ہے، جبکہ انہیں اسکول جانے کے لیے اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تیار کرتی یہ ہے ملتان کی انم شہزادی، جو جسمانی معذوری کا شکار تو ہے، اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال بہت اچھے انداز میں کر رہی ہیں۔ انم ویل چیئر استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کے تمام کام بھی سر انجام دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی بیٹیوں کو بہتر اور اپنے سے اچھی زندگی مہیا کرنا ہے، تاکہ وہ بڑی ہو کر خود مختار بن سکیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی بچوں کی ویسی تربیت کروں کہ باہر نکل کر یہ لوگوں کو سمجھیں اور ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ کریں۔ جو ہم خصوصی طور پر ہم ڈسیبل پرسنز کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں اچھا سمجھا جاتا، تو میں اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ چیز انہیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ انم کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے معذوری کو کبھی ممتا پر بھاری نہیں پڑنے دیا۔ وہ اپنی بچیوں کے لیے ہر وہ کام کرتی ہیں جو کوئی عام خاتون کرتی ہے۔ بچیوں کو بھی یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ وہ معاشرے میں ہر انسان کی عزت کریں۔ معذوری کے باعث معاشرے میں ہماری عزت کم لوگ کرتے ہیں، مگر میں اپنی بیٹیوں کی پرورش ایسے کر رہی ہوں کہ وہ کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ ڈسیبل پرسنز ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ بھی اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کر سکتے ہیں، جیسے ایک نارمل ماں کرتی ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں ڈسیبل پرسن۔
अनम के शौहर हाफिज नवीद का कहना है कि हम दोनों जिस्मानी माजूरी का शिकार तो हैं, मगर मेरी बीवी ने घर को जिस तरह से संभाला वो किसी नेमत से कम नहीं। वो दुनिया की बेहतरीन बीवी और सबसे अच्छी माँ है जो मेरी बेटियों को बेहतरीन तरबियत दे रही है। बच्चियों की परवरिश नॉर्मल ख़वातीन की निस्बत बहुत आला और बहुत उम्दा अंदाज में करती हैं और कोशिश होती है कि जो बाहर से बच्ची यानी कि कैच करती है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा ये कर सकती हैं, तुम्हारी मम्मा ये कर सकती हैं, तो वो कहती है जी मेरी मम्मा सब कुछ कर सकती हैं मेरे लिए ना। माओ के आलमी दिन के मौके पर अनम जैसी माएँ भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब बात करें अस्पतालों में मरीजों की देखभाल अहम फरीजा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद अस्पतालों में नर्सेस के किरदार और इसकी अहमियत को उजागर करना है। नर्सिंग की अहमियत और किरदार को उजागर करने और उसकी खिदमात के एतराफ़ में हर साल 12 मई को नर्सिंग से मुंसलिक अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है और साथ ही इस शोबे से वाबस्ता खवातीन के दरपेश मसाइल पर भी रोशनी डाली जाती है। यह दिन मनाने का आगाज 1953 में हुआ। शोबा सेहत में डॉक्टर्स के साथ नर्सेज, वार्ड बॉयज और दीगर स्टाफ के भी बड़ी अहमियत है। मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में नर्स अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजह है कि शोबा सेहत में नर्सेज को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल। जिस्मानी और ज़हनी मरीजों की बढ़ती ही तादाद की वजह से नर्सेज की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ वो बगैर किसी तफरीक के मरीजों की खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर रहती हैं और दूसरी तरफ इन्हीं मरीजों के असाबी रवैयों का भी शिकार होना पड़ता है। जो हमारी नर्सेज हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं पेशेंट की केयर में। तो जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें वो नर्स जो है वो हेल्थ एजुकेटर भी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी है, काउंसलर भी है, रिसर्चर भी है और आजकल की जो नर्स है वो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है बल्कि पीएचडी है। और जो हमारी सर्विसेज हैं वो राउंड द क्लॉक हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नर्सिंग की तादाद तकरीबन 1 लाख है। अस्पताल में हर 4 बेड के लिए 1 नर्स होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त हर 40 इंडोर मरीजों के लिए 1 नर्स है। जैसा कि हमारा 2024 का थीम है कि आवर नर्सेज आर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो आप लोग पेशेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उनके रिसोर्सेज को बचाएं, हॉस्पिटल के रिसोर्सेज को सेव करें और दिन रात खिदमत करके अपना और अपने प्रोफेशन का नाम रोशन करें। नर्सिस के आलमी दिन के मौका पर मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया गया। जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी इलाज का विक्टोरिया हॉस्पिटल की नर्सों ने इस दिन की मुनासबत से हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी का मुतालबा कर दिया। जान बल्लभ मरीज का इलाज अस्पताल में हो या घर में, नर्सेज की खिदमात को जुटलाया नहीं जा सकता। ब्लड प्रेशर चेक करना, मरीज को ड्रेप्स और इंजेक्शन लगाना, दवाई खिलाना, सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना नर्सेज अपना अखलाकी फर्ज समझती हैं। यही वजह है कि नर्सेज की खिदमात को सराहने के लिए हर साल 12 मई को इनका आलमी दिन मनाया जाता है। विक्टोरिया अस्पताल की नर्सेज का कहना था कि इन्हें अपनी वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हम हर साल नर्सिस डे मनाते हैं मगर हमें नर्सिस डे की छुट्टी नहीं मिलती। हम नर्सिस डे अपनी ड्यूटी में रहते हुए अपने पैसों से मनाते हैं। ना हमारे पास कोई ऑडिटोरियम होता है, ना हमें कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिस जगह पे नर्सिस डे मनाया जाए। तो मैं मरियम नवाज साहबा से ये अपील करूंगी, वो तो फीमेल हैं, उनको तो नर्सिस की आवाज़ बनना चाहिए। क्राइसिस सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं है, नर्सिस को भी बहुत सारे क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। हमारे इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करनी चाहिए और हमारे कुछ प्रॉब्लम है जिनको हल करना चाहिए। नर्सिस का मजीद कहना था कि शोबा सेहत का दारोमदार और अस्पतालों में हमारा किरदार रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, लेकिन इंतजामी अफसरान हौसला अफजाई की बजाय तंग नजरी से पेश आते हैं। आलमी दिन पर भी कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया गया। एज यू कैन सी वी आर नर्सिस, लेकिन हमारी संडे है, जैसे हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन हम इतना तो हम वो करते हैं ना, डिजर्व करते हैं कि हमारे इदारे की तरफ से हमें किसी ने विश नहीं किया। और मतलब हमें रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो हम थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो हम डिज़र्व करते हैं ना। एंड हैप्पी नर्सिस डे मेरी हमारी तरफ से, सिस्टर की तरफ से और सबकी तरफ से हैप्पी नर्सिस डे टू ऑल द नर्सिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हम इतना डिज़र्व करते हैं कि हमें एक अप्रिसिएशन दिए जाए, कि हमें एटलीस्ट विश ही कर दिया जाए। अब और कुछ ना करें, एटलीस्ट विश ही कर दें हमें, यही हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू। नर्सेज ने अपने आलमी दिन पर हुकूमत से हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
आगे बढ़े आपको बताएं, नौजवान नस्ल बेरा रवि की राह पर चल पड़ी। बस्ती मलूक में अफसोसनाक वाकया, 7वीं क्लास की तालिबे इल्म बदफेली का निशाना बन गई। बच्चे के शोर करने पर अहले इलाका जमा हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती मलूक के नवाही इलाका कस्बा मॉडल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमसाये ने 14 साला लड़के को बदफैली का निशाना बना डाला। बच्चे के शोर करने पर अहले इलाका खेतों में पहुंच गए। मुलजिम और उसके साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साकू इंसाफ मुतालबा चाहिए। साकू दराना अपने बच्चे दी इज्जत बर्बाद सी गई। साकू इंसाफ चाहिए। साकू तड़िया धमकियां बड़िया मिलेंगे और दरा है। साकू जो कुछ भी साढ़े नाल हो गई है, साकू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के साथ रैप हो गया है एतवार वाले दिन 5 तारीख को। मैं फौरन तो तैयारी की थी, 2 दिन बाद मुझे पता लगा। मैं इधर आया हूँ, कानूनी कार्रवाई की है, मुलजमान को नेफ्ट कर लिया है। 2 आदमी मौजूद हैं जो रैप करने वाले हैं। मेरे को पहले डराए ने बेटे को पहले मरेसू अगर तेना रीति दा गलत काम न करवाया। इन गल मैं डर गया। मेरे नाल ये काम कीते ने, रेप कीते ने। मेरे को जोर दबे, मेरे को मरे ने बच गया। उन्होंने वडेरा गए छुड़वावन कीते, उन्हें मेरे को मारे भाई उतना बंदे पकड़े जाए। सारे बाल नाल जनाब ज्यादती थी गई है, जबरदस्ती थी गई है और डरावा दे के। 8 तारीख को हमें कॉल मसूल हुई थी कि एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। वो FIR दर्ज करके हमने मुलजमान पकड़ लिए हैं। DNA वगैरह भी उनका हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो भी उसके बाद होगा मेरिट होगा। SHO थाना बस्ती मलूक काशिफ शहजाद अवान का कहना था कि मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा जमील रोही, बस्ती मलूक। शहर आले में छुट्टी के रोज खेल के मैदान आबाद हो गए। शहरी छुट्टी का मजा दुबारा करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंच गए, जहां बच्चे और नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। तानियों ने छुट्टी का मजा दुबारा करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने और लुत्फानंदोज होने के लिए बच्चे और नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहे। नौजवानों का कहना था कि इतवार के दिन छुट्टी होती है, जिसे जिस्मानी वर्जिश में गुजारना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे सेहत तंदुरुस्त रहती है, सेहतमंद रहता है इंसान, और ना बॉडी सही नशे में पाती है और ना तंदुरुस्त रहती है बॉडी। बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलते चौके छक्के मारते नजर आए। बच्चों का कहना था कि पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, छुट्टी के दिन दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहते हैं। संडे का दिन ही होता है हमारे पास क्रिकेट खेलने के लिए, और कोई दिन नहीं होता। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सारा पूरा हफ्ता पढ़ते हैं, फिर संडे वाले दिन सुबह सब मिल के आते हैं, मैच खेलते हैं। बच्चों ने जहां छुट्टी को खूब एंजॉय किया, वहीं हुकूमत से दरख्वास्त की कि शहर में ग्राउंड्स की तादाद को बढ़ाया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही न्यूज़, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खालिद जावेद गोराया की ज़ेरे सदारत नंबरदार कन्वेंशन महकमे माहौलियात का साथ देने और फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मियांवाली में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने फसलों की बाकियात जलाने के नुकसानात बारे बताया। इस मौके पर नंबरदारान ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह लास्ट ईयर हमने 1,50,000 जो थी टारगेट था हमारा कपास का, उसको हमने पूरा किया था। इसी तरह हमने बिल्कुल इसी तरह हमने लास्ट ईयर भी इनके कन्वेंशन मुकर्रर किए थे। उसमें नंबरदार को इनवाइट किया था, पर नंबरदार ने अपने मौजा में जाके किसानों के साथ मीटिंग्स की थी, जिसमें हमारे पटवारी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज उन्होंने किसानों के साथ मीटिंग की थी। महकमा एग्रीकल्चर ने बड़ा अहम रोल अदा किया था और नवाज साहब ने बड़ा लीड किया फ्रॉम दी फ्रंट। और इस तरह हमने जो लास्ट ईयर हमारा 1,50,000 एकड़ का टारगेट था उसको मीट किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कन्वेंशन के दौरान नंबरदारान को कपास की काश्त के हदफ बारे भी बताया गया। आज के कन्वेंशन में सबसे मेन जो चीज़ थी वो चीफ मिनिस्टर साहबा का मैसेज था कि जो माहौलियात को बेहतर करने के लिए फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, उसमें तो आप तमाम नंबरदार साहबान को आप लूफ में लें, उनके साथ ये डिस्कस करें ताकि वो आगे किसानों के साथ जाके मीटिंग्स करें और गवर्नमेंट का मैसेज जो है किसानों तक पहुँचाएँ और ये इंश्योर करें कि जो किसान है वो जो आपकी गंदम की बाकियात है उसको आग ना लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारे नंबरदार साहबान ने हमें पूरा एतमाद दिया है। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया का मजीद कहना था कि कपास की काश्त का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर नोमान महमूद राना और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। दरियाए शनाब के किनारे रेस्क्यू टीम की फर्जी मशकें। डिप्टी कमिश्नर ने फर्जी मशकों और फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया।
मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। दरियाए चनाब के किनारे रेस्क्यू हुकाम की तरफ से सालाना मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आज रेस्क्यू 1112 और इदारों के ताउन से जो मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे हुई उसको मैंने विटनेस किया। इनके तमाम इंतजामात, इक्विपमेंट, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से मुझे इत्मीनान है कि खुदा न खास्ता अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुजफ्फरगढ़ में चूंकि वल्नरेबिलिटी दो तरह से है, यहाँ पे इंडस भी है, यहाँ पे चनाब भी है, उसके बहुत सारे वल्नरेबल पॉइंट्स, फ्लैश पॉइंट्स भी हैं जो डॉक्टर साहब ने बड़े डिटेल में मुझे बताए। जो भी क्राइसिस हो उसको अगर फोरसी कर लिया जाए, उसकी प्लानिंग कर ली जाए तो उसका जो डेवस्टेशन है वो बहुत हद तक मिटिगेट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां मोहम्मद हुसैन का कहना था कि फर्जी मशकों का मकसद रेस्क्यू की सलाहियतों का जायजा लेना है। मुजफ्फरगढ़ हर साल सैलाब से मुतासिर होता है। अगर इस साल भी कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो रेस्क्यू मुकम्मल तौर पर तैयार रहेगी। जो भी मॉक ड्रिल होती है उसका मकसद हमेशा यही होता है कि अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स को चेक किया जाए, उनकी स्किल्स को चेक किया जाए, जो भी इक्विपमेंट आपने उसको यूटिलाइज करना है उसकी जो है एफिकेसी को, उसकी कैपेसिटी को उसको चेक किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू टीम्स ने और दीगर इदारों ने जो है यहाँ पे अपने एज पर कंटीजेंसी प्लान अपनी इस्तेदाकार का यहाँ पे मुजाहरा किया यहाँ पे, और मुख्तलिफ जो किस्म की जो टेक्निक्स थी वाटर रेस्क्यू टेक्निक्स उनका रेस्क्यूअर्स ने यहाँ पे मुजाहरा किया, जिसको डीसी साहब ने देखा और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आपकी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है तो इंशाल्लाह रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की सुपरविजन में इंशाल्लाह जो भी ऐसी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। रेस्क्यू की जानिब से दरियाए चनाब के किनारे फर्जी मशकों के दौरान डूबते हुए अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। डेरा गाजी खान में स्टीम गाला का इनेकाद तकरीब गवर्नमेंट कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में सजाई गई। स्टीम गाला में जिला भर से 14 सरकारी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में स्टीम गाला का इनेकाद किया गया। स्टीम गाला में जिला भर से 14 सरकारी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने साइंस, रियाजी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल मॉडल के प्रोजेक्ट पेश किए। तकरीब में प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज फैजुल्ला तरीन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। शुरका ने तलबा की जानिब से बनाए गए प्रोजेक्ट देखकर खूब दाद दी। ये स्टूडेंट एक्टिविटी जो है वो इनकी लर्निंग में बड़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बच्चों को क्लास में ही ये एक्टिविटी करवाएं तो आगे चलकर बच्चों में रिसर्च का शौक पैदा होता है, साइंस के प्रोजेक्ट बनाने का शौक पैदा होता है। बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे वो काबिल तहसीन थे। हमारे इदारे के, अपने इदारे के भी प्रोजेक्ट्स थे। हमारे साथ, मेरे साथ जो इस वक्त प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खड़े हैं, इनके इदारे ने भी बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन की। इनके इदारे ने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। जजेस के फ़राइज़ अब्दुल माजिद दुरानी, मोहम्मद इसहाक साकी और फरजाना यास्मीन ने अंजाम दिए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। शहर हालिया में बिखरे बहार के रंग। खासो आम बाग में लगे मौसमी फूल खिल गए। पार्क में 20,000 से ज्यादा फूलों की पनीरियां लगाई गई थी। रंग बिरंगे फूल बड़ों के साथ बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहर मुल्तान में बिखरे बहार के रंग। आम खास बाग पार्क के फ्लावर कारपेट में लगे मौसमी फूल खिल गए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से पार्क में 20,000 से ज्यादा मौसमी फूल की पनीरियां लगाई गई थीं। शहरियों का कहना था कि पार्क में खिले फूल देखकर खुशी हो रही है। माशाल्लाह ये फूलों का इंतजाम किया, ये बहुत हमारे दिल को बहुत अच्छा महसूस होते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो वैसे भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पौधे लगाएं, पौधों को पानी देने से ये पौधे भी दुआ करते हैं। और ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा कदम है। इससे बच्चे, बड़े, नौजवान जब फारिग वक्त में आते हैं बहुत वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रंग बिरंगे फूल बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी तवज्जो का मरकज भी बने रहे। बच्चों का कहना था कि आज छुट्टी के दिन पार्क आए हैं, फूलों को देखकर अच्छा लग रहा है। आज इतवार का दिन है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये फूल भी बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। आज इतवार का दिन है, हम पार्क में आए हैं। ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं। शहरियों ने PHA हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर के दीगर पार्कों में भी फ्लावर कारपेट बनाया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।